हाय गाइस, वेलकम बैक। अभी तक हम रोज स्टॉक्स की बात करते हैं। मैं आपके लिए स्टॉक ढूंढती हूँ, आप लोग उसमें ट्रेड करते हैं और पैसा बनाते हैं। बट आपको सीखना चाहिए। आज मैं एक लर्निंग वीडियो बना रही हूँ और आज हम कुछ बात करेंगे एक टेक्निकल इंडिकेटर की, जिससे आपको कुछ थोड़ी बहुत हेल्प हो सकती है। Before we go on anywhere, I'm your host, Dr. Seema Jain, a SEBI registered research analyst, and you can follow me on Twitter, Telegram, and YouTube, right? And even on Insta, you can follow me. I'm super active on my Telegram channel. Please join me and do live trading with us. So here I'm with you, and let's talk about an indicator called Bollinger Band, right? So we're going to learn about it theoretically first, and we'll see, what is Bollinger Band and what does it exactly do. अगर मैं आपको बहुत broader perspective में बताऊं, तो Bollinger Band जो है volatility है एक particular stock में कम हो गई है या कहाँ पे ज्यादा हो जाती है उसको दिखाता है, राइट? कहाँ पे जो प्राइस है एक नैरो रेंज में है और कहाँ पे प्राइस में एक वॉलिटिलिटी इंक्रीज हुई है, ब्रेकआउट आया है, इस चीज को दर्शाता है। So let's talk about it. A Bollinger Band is a technical analysis tool defined by a set of trend line plotted two standard deviation positively and negatively away from a simple moving average of a security price, but which can be adjusted to user's preference. So Bollinger Band में एक mid line होती है, which is nothing but a simple moving average 20 या 21 का आप ले सकते हैं, और दो बैंड्स होते हैं, एक अपर बैंड होता है, एक लोअर बैंड होता है। अपर बैंड, दिस हैज बीन डेवलप्ड बाय जॉन बोलिंजर, designed to discover opportunities that give investors a high probability of properly identifying them an asset is oversold or overbought, right? तो ये इस तरह से डिजाइन किया गया है बाय जॉन बोलिंजर कि आपको कहाँ पे स्टॉक ओवरबॉट या ओवरसोल्ड है आपको वहां से पता लग जाए। So basically what I'm going to do for you is how to calculate Bollinger Bands. The first step in calculating Bollinger Bands is to compute the simple moving average of the security in question, typically using a 20 SMA. सपोज आप लोग बैंक निफ्टी को अगर ट्रेड कर रहे हो तो सबसे पहले उसका आपको मूविंग एवरेज से एक 20 SMA से आपको मिडिल लाइन निकालनी है। Now, typically, 20-day moving average could average out the closing prices of the first 20 days as the first data point. The next data point would drop the earliest price at the price on day 21 and make the average and so on. तो पिछले 20 दिन का आप डेटा को ऐड करोगे और उनका एवरेज निकालोगे और उसको प्लॉट करोगे, एंड दिस हैपेंस ऑटोमेटिकली। अगर आप कहीं किसी भी अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे आप ज़ेरोधा पे हो या ट्रेडिंग व्यू पे हो, वहां पे आप यू कैन कैलकुलेट इट डायरेक्टली. It comes automatically by the Bollinger Band. Next, the standard deviation of the securities price by will be obtained. Standard deviation is a measurement of average variance and features prominently in statistics, economics, accounting and finance. So standard deviation एक बहुत important चीज है। जब हम कोई भी मैथमेटिकल कोई भी स्टेटिस्टिकल कॉन्सेप्ट करते हैं तो उसमें हम एवरेज निकालते हैं और उससे हम वेरिएशन निकालते हैं, वेरिएंस निकालते हैं, हाउ मच अ प्राइस कैन मूव अप एंड डाउन, राइट? दैट इज व्हाट कुड बी अंडरस्टूड. सो अगर आपको सिंपली कैलकुलेट करना है तो आप पहले समझिए कि MA is moving average, TP is typical price, which is high plus low plus close by 3. N is the number of days in smoothing period, typically 20. M is the number of standard deviation, typically 2. And अगर हम सिग्मा TPN करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर लास्ट पीरियड्स ऑफ N. तो अगर हम बोलिंजर बैंड अपर बैंड निकालना चाहते हैं तो मूविंग एवरेज प्लस M is basically the number of standard deviation, typically 2 standard deviation लेते हैं for the last 20 days या 20 periods के लिए निकालते हैं. इसी तरह Bollinger Band down में हम moving average से उसको subtract कर देते हैं, right? तो इस तरह से दोनों upper band and the lower band are plotted. What do Bollinger Band tells us? Bollinger Band are a highly popular technique. Many traders believe the closer the prices move to the upper band, the more overbought the market. And the closer the prices move to the lower band, the more oversold the market. John Bollinger has a set of 22 rules to follow. हम कभी और किसी दिन इन रूल्स के बारे में बात करेंगे, बट करेंगे बात इसके बारे में। मैं उनको बहुत क्लोजली फॉलो करती हूँ रूल्स को, तो मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगी। अब अगर आप देखेंगे तो बोलिंजर बैंड कुछ इस तरह से दिखता है। मैं अभी आपको लाइव लगा के भी दिखाऊंगी। आप देखिए बीच में आपको एक लाइन दिखेगी विच इज कॉल्ड अ सिंपल मूविंग एवरेज, राइट? ये सिंपल मूविंग एवरेज है बीच में, और ये अपर बैंड है और ये लोअर बैंड है, राइट? आप कहीं पे देखेंगे ये बैंड नैरो डाउन हो रहा है और कहीं पे लोअर वाला बैंड नीचे एक्सपैंड हुआ है, ऊपर वाला बैंड ऊपर एक्सपैंड हुआ है।
right? So this is a squeeze, right? I'll show you more clearly. ये जो जगह है यहाँ पे प्राइस आके थोड़ा सा स्क्वीज हो गया है और सडनली प्राइस में एक्सपेंशन हुआ है, तो आप देखेंगे बबल नीचे की तरफ एक्सपैंड होता है एंड ऊपर की तरफ एक्सपैंड होता है, right? The squeeze is a central concept of Bollinger Bands. When the band comes closer together, constricting the moving average, it is called a squeeze. A squeeze signals a period of low volatility and is considered by traders to be potential sign of future increased volatility and possible trading opportunities. तो जब भी कभी स्क्वीज लगता है मतलब प्राइस एक नैरो रेंज में मूव करना शुरू करता है, एक हायर और लोअर वैल्यूज को ब्रेक नहीं करता है, उस जगह पे जब प्राइस नैरो रेंज में मूव कर रहा है उसको हम स्क्वीज बोलते हैं। और जैसे ही प्राइस किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है आपको सडनली एक इंक्रीज्ड वॉलेटिलिटी दिखेगी। सो द ब्रेकआउट्स कैसे आते हैं? अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ द प्राइस एक्शन अकर्स बिटवीन द टू बैंड्स। Any breakout above and below the bands is a major event. The breakout is not a trading signal. The mistake most people make is believing that the price hitting or exceeding the band of one of the band is a signal of buy or sell. Breakout provides no clue as to direction and extent of future price movement, right? Now, limitation of Bollinger Band. तो अगर आप standalone Bollinger Band को use करना चाहते हो, it's not advisable. You have to use some more technical indicators with it. So they are simply one indicator designed to provide traders with information regarding price volatility, right? John Bollinger suggests using them with 2 or 3 other non-correlated indicators that provide more direct market signal. He believes it is crucial to use indicators based on different types of data. Some of his favorite techniques are basically MACD or use it with RSI. Because they are computed from a single moving average, they weigh older price data the same as the most recent, meaning that the new information may be diluted by outdated data. So थोड़ा सा lagging indicator है, but मुझे लगता है कि अगर आपको पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है तो बहुत बहुत जबरदस्त एक इंडिकेटर है। इंट्राडे में भी अगर आप यूज करना चाहते हैं तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करके कर सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलती हूँ ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे और उसके कुछ पॉइंट्स मैं डिस्कस करती हूँ। मैंने आपके लिए अपना स्टॉक लगाया है जो मैंने आपको थोड़े दिन पहले दिया था, शारदा क्रॉपकॉम, राइट? कोई भी लगा लीजिए आप, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखते हैं कि इसमें ब्रेकआउट कहाँ पे आया स्टॉक में। अगर आप नोटिस करेंगे तो स्टॉक हैज बीन रेंज बाउंड फॉर ऑलमोस्ट लाइक क्वाइट अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, राइट? ये एक नैरो रेंज में मूव कर रहा था 283 टू 384, 100 पॉइंट्स के बीच में ही ये स्टॉक अप एंड डाउन मूव कर रहा था, राइट? और ये हम बोल सकते हैं बहुत लंबा स्क्वीज लगा हुआ था स्टॉक प्राइस में। बट जैसे ही स्टॉक में वॉलेटिलिटी इंक्रीज हुई, ये आप देखेंगे बबल जो नीचे इसका लोअर बैंड है वो नीचे की तरफ एक्सपैंड हुआ और अपर बैंड ऊपर की तरफ एक्सपैंड हुआ, राइट? और जैसे ही कैंडल्स, अब हम बाद में बात करेंगे कि कैंडल्स अगर बाहर जाती है तो क्या होता है। आप यहाँ देखेंगे कैंडल्स बाहर, जब तक कैंडल्स बाहर हैं ये ट्रेंडिंग में रहेगा स्टॉक। उसके बाद स्टॉक फिर थोड़े दिन के लिए एक स्क्वीज लगा इस स्टॉक में, ऑलमोस्ट लाइक starting from 9th March to about 30th March, and then again you see there is a breakout that has happened in the stock, right? So squeeze is what you would like to monitor, right? For example, अगर हम बैंक निफ्टी को देखते हैं, right? अगर हम बैंक निफ्टी को देखते हैं तो वहां से we will try to understand कि क्या होता है। थोड़ा volatile इंस्ट्रूमेंट है तो आपको टाइम पीरियड अपना थोड़ा सा लो रखना पड़ेगा, राइट? अगर कहीं कोई बहुत क्लियर अगर दिखता है तो वी विल ट्राई। सी हियर देयर इज अ स्क्वीज, दिस इज अ स्क्वीज। आई एम गोइंग टू मार्क द हायर लाइन, अपर लाइन एज वेल एज द लोअर लाइन, राइट? ये लोअर सपोर्ट एंड लोअर लाइन। If it breaks, you will get a trend, right? See here, the bubble goes in the upper direction, there is a bloating in the bubble here, or stock starts falling down, right? You can do it in intraday trading as well। अगर आपको कहीं पे Bollinger Band में squeeze मिलता है, आप surely उसमें आप ट्रेडिंग के बारे में सोच सकते हैं। जैसे आपको एक बहुत सुंदर स्क्वीज मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे लगा हुआ है, प्राइस में एक स्क्वीज लगा हुआ है, राइट? ये जगह पे। और इसके बाद क्या एक जबरदस्त ब्रेकआउट आया स्टॉक में फ्रॉम 36,535 टू अबाउट 38,704, राइट? अगेन यहाँ पे स्क्वीज लगा है। आप इस पार्ट को देखिए, इस पार्ट में स्क्वीज लगा हुआ है। यू कैन मार्क योर बाउंड्रीज हियर एंड यू कैन मार्क योर बाउंड्रीज हियर, एंड उसके बाद यू कैन सी अ ड्रॉप हैज कम ऑलमोस्ट लाइक 700-800 पॉइंट्स का ड्रॉप आया है, एंड दिस इज हाउ यू वुड बी एबल टू ट्रेड इन द स्क्वीजेस, राइट?
तो बॉलिंजर बैंड के बारे में और भी बहुत सारे फाइनल नुआंसेस हैं, मैं किसी और दिन बात करूंगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको इंट्राडे ट्रेड करना है तो आप 15 मिनट में बॉलिंजर बैंड ढूंढ सकते हैं, और अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो 1 डे में, 1 वीक में, लॉन्गर द बेटर। जितना ज्यादा लंबा समय के लिए स्क्वीज लगेगा उतना बेटर आपको ट्रेड मिलेगा, राइट। और अगर आपको इंट्राडे ट्रेड करना है तो 5 मिनट भी ले सकते हो, 15 मिनट तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं। तो लगा के देखिए, पास में लगा के देखिए, आपको किसी इंडिकेटर पे कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप उसको पास में लगा के देखेंगे। आप, अगर आपको ये नहीं पता है कि पास में कैसे लगा के देखा जाए, तो मैं आपको एक रिप्ले करके दिखाती हूँ, राइट। ये मैंने ट्रेडिंग व्यू का ऑटो रिप्ले फीचर यूज कर रही हूँ मैं, और यहाँ पे हम यूज करके देखते हैं कि क्या होता है जब हम बॉलिंजर बैंड स्क्वीज को ट्रेड करते हैं। तो इसी तरह आप भी करोगे, और लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर, कहीं से भी शुरू कर लेते हैं एंड लेट्स सी कि क्या होता है। सो आपको बेसिकली मॉनिटर करना है स्क्वीज, कहाँ पे प्राइस में स्क्वीज हो रहा है, प्राइस कहाँ पे जाके कम वोलेटाइल हो रहा है, जहां पे प्राइस की वोलेटिलिटी कम हो रही है, उस एरिया को आपको मार्क करना है, और जिस भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट आता है उस डायरेक्शन में आप ट्रेड कर सकते हैं। अभी इसमें बहुत सारी फाइनल नुआंसेस हैं जो मैं अगले आने वाले वीडियो में बात करूंगी। ये मैंने बैंक निफ्टी का 15 मिनट का ट्रेड लगा रखा है, राइट। तो लेट्स सी, वी आर जस्ट लुकिंग फॉर अ स्क्वीज, राइट। किसी भी जगह एक एक बार हम करके देखेंगे कि डज इट वर्क और डज इट नॉट वर्क। तो अगर कभी अपर बैंड को टच करता है स्टॉक निफ्टी या कुछ भी, तो इसका मतलब ओवरबॉट में आ चुका है, और अगर लोअर बैंड को हिट करता है तो ओवरसोल्ड में आ गया है। अब यहाँ पे देखो, आप स्क्वीज लग रहा है, राइट। स्क्वीज लग रहा है, आई एम गोना मार्क इट हियर एंड आई एम गोना मार्क इट हियर, राइट। लेट्स सी व्हिच डायरेक्शन द ब्रेकआउट कम्स। थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट जोन है, लेट्स सी। सो सी हियर, नाउ इट इज ट्रेंडिंग। एटलीस्ट आपको यहाँ से यहाँ तक एक मूव मिला है, करीब 500 पॉइंट्स का मूव मिला है, विच इज नॉट अ स्मॉल मूव, राइट, विच इज डेफिनेटली नॉट अ स्मॉल मूव, राइट। एंड a long tunnel, long horizontal price, you can exit your trade anywhere. Now let's see if there is another squeeze which comes up. So here I can see another squeeze, right? Here is another squeeze, and the price has broken in the downward direction, right? Price is breaking in the downward direction. Now you have a good trade, almost like from here to here also you get about 200, 300, 400 points, right? But a lot of psychology is involved when you are trading live, क्योंकि आपको right in the live market you have to take emotions, you have to trade, right? You have to control your emotions because you have to trade what you see, what your rules tell you, right? So I'm not going to go more into detail over here, but definitely अगर आपको invest करना है तो 1 day का time frame, और अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम लेके चल सकते हैं। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and don't worry about it, we have not monetized it, so you don't need to say that we are doing it, we are asking you to subscribe or share because we need money. No, definitely not. It's a purely education channel which is going to help more people to learn about stock market. Take care, see you in the next video.